Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2021. The question is on calculus, increasing decreasing behavior, functions पे ये पूरा question है. Let's solve this question. Let f is defined from R to R. Domain is given R, codomain is R, and fx is defined by this. Then which of the following statement are true? तो यहाँ पे you have to check the increasing decreasing behavior first. A of B. You have to check onto or onto function और D option में आपको check करना है range. देखो ये दोनों ऑप्शन तो रिलेटेड है बिकॉज इफ यू हैव टू चेक एनी फंक्शन व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी ऑन टू फंक्शन फॉर ऑन टू व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑन टू range should be equal to range of the function should be equal to codomain. अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है दैट मींस द फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन. अब यहाँ पे कोडोमेन क्या गिवन है? कोडोमेन इज आर. मतलब अगर इसका रेंज अगर आर है तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. तो यू कैन क्लियरली से देखो इन दोनों में से तो एक ही आंसर पॉसिबल अगर होगा तो दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि अगर ऑन टू फंक्शन हुआ तो रेंज ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन और अगर ये रेंज हुआ तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. यू कैन क्लियरली सी. ठीक है, तो आप देखते हैं क्या करना है. ठीक है, तो पहले तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं. हाउ टू चेक the function is increasing decreasing function. you can clearly see this is a differentiable function जिसको आप डिफरेंशिएट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं. तो इफ यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस इज लेट्स से y. तो इफ आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस dy by dx, what is dy by dx? दिस इज इक्वल टू इसका आप u by v अप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x plus 4 into derivative of numerator which is 2x minus 3. Correct? Minus this is x square minus 3x minus 6 into derivative of denominator which is 2x plus 2. 2x plus 2 differentiate हमने कर दिया. ठीक है, and now see if I just simplify this, अब इसको open कर देते हैं. This is 2x cube plus 4x square plus 8x minus 3x square minus 6x minus 6x minus 12. ठीक है, minus इसको minus this will become minus 2x cube, then this will become plus 6x square, this will become minus minus plus 12x. ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. minus 2x square plus 6x and this is plus 12. You can check this calculation. ये calculation simple है. You can see this is minus 2x cube plus 3x square 6x square. ये minus 12 minus plus हो गया. This is 2x square minus x square. This is minus minus plus and this is minus 12 upon we have x square plus 2x plus 4 का whole square. Simple, हमने differentiate कर दिया. Now you can check this. You can see 2x cube और ये minus 2x cube cancel हो गया. This is और 12 यहाँ पे minus 12 था और ये plus 12 cancel. So this is you can see this is 4x square minus x square minus 3x square. तो ये x square हो गया और यहाँ से you can say 6x square minus 2x square मतलब 4x square. तो ये हो गया 5x square. You can see this is 5x square plus अब x के टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं. x के टर्म में you have this is ये देखो 6x भी कैंसिल ही हो गया and you have 8x plus 12x 8x plus 12x which is 20x. This is 20x upon x square plus 2x plus 4 का whole square. तो ये हमारे पास देखो सिंपल आ गया dy by dx the derivative and you can clearly see this is 5x into x plus 4 upon this whole square. ये आपके पास dy by dx आ गया. Now see dy by dx पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए. तो फॉर इंक्रीजिंग बिहेवियर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx शुड बी पॉजिटिव. अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 किया तो यू कैन सी फॉर इंक्रीजिंग dy by dx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यू कैन सी व्हाट इज द कंडीशन. ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो x into x plus 4 शुड बी पॉजिटिव. सो दिस इज x into x plus 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो व्हाट इज दिस? x बिलोंग्स टू minus infinity to 0 minus infinity to minus 4 minus infinity to minus 4 union 0 to infinity. तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा
और dy बाई dx अगर लेस देन 0 हुआ तो x बिलोंग्स टू -4 to 0। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट इज द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक, राइट। सो नाउ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू कैन सी f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to -1। तो -2 से -1 में -2 -1 इज इन दिस इंटरवल, तो dy by dx लेस देन 0 है, यू कैन क्लियरली सी। -4 से 0 के बीच में यू कैन सी दिस इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट। तो यू कैन सी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। अब 1 to 2 1 to 2 इस इंटरवल में होगा, यू कैन क्लियरली सी dy by dx पॉजिटिव है, मतलब ये आंसर इज आल्सो करेक्ट, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन ए और बी तो आ गया, इससे सिंपल क्वेश्चन, यहाँ ए और बी पार्ट सॉल्व करना तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब चेक करना है आपको ऑन टू और इनटू फंक्शन। अब ऑन टू इनटू फंक्शन के लिए, और वैसे भी ऑप्शन डी में आपको रेंज चेक करना ही है, तो रेंज फाइंड करना पड़ेगा आपको, फॉर बोथ द ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड द रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए सी देयर आर डिफरेंट वेज। वन वे टू सॉल्व दिस, दैट इज टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। एक तो आप क्या कर सकते हो, देखो वन मेथड, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो इफ यू हैव दिस इज x square minus 3x minus 6 y is equal to x square minus 3x minus 6 upon x square plus 2x plus 4. You can clearly see this is quadratic by quadratic. So method 1 for finding the range. एक मेथड ये देखो, how will you find the range of this? If I cross multiply this, this is yx square plus 2xy, ठीक है, plus 4y. This is equal to x square minus 3x और ये -6, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज y minus 1 x square plus 2y plus x 2y plus 3 x plus 4y minus 6 equal to 0, करेक्ट है। And now you see, भाई यहाँ पे देखो, you can see we have a degree 2 equation in x square, correct? But आपको ये पता नहीं है कि y can be equal to 1 और y cannot be equal to 1. तो if I take the first case, if y is equal to 1, अगर क्या हम चेक करें क्या y 1 हो सकता है? अगर y 1 हुआ तो what is the value? You can see, देखो आपने y equal to 1 पुट किया, so this will become 5x, ये वाले तो 0 हो ही जाएगा, और this will become -3 -2 इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू -2 by 5 पे ये वैल्यू y1 पॉसिबल है, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब y कैन बी इक्वल टू 1, करेक्ट। y इक्वल टू 1 इसके रेंज में होगा। सेकंड केस आप ध्यान से देखो, अगर y 1 नहीं है, y नॉट इक्वल टू 1, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड x इज अ रियल नंबर, मतलब इसके इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दोस विल बी रियल वैल्यूज, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So if I apply d greater than equal to 0, वहां से you can see this is 2y plus 3 whole square minus 4y minus 1 into 4y minus 6 greater than equal to 0. अब यहां से you can easily solve this equation and get what is the range of y. तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि what is the range of y. I hope this is clear, ठीक है। तो इसके आगे का कैलकुलेशन you can easily do. This is one method to solve this. बट इस क्वेश्चन में देखो, एग्जाम में ये तो मैंने आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया, बिकॉज कई बार सिंपल क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो उसमें आप इस मेथड को यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, सबका रेंज आप इस मेथड से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द मेथड व्हिच आई वांट टू डिस्कस, जो एग्जाम में ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो डिफरेंशिएट कर चुके हो, आप इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक कर चुके हो, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि 0 से 4 में, -4 से 0 के बीच में, यू कैन सी बिटवीन -4 to 0 this is decreasing, this function is decreasing, और -infinity to -4 और 0 to infinity में this function is increasing, ये function increasing है। अब इसी को इसका देखो, I'll draw a rough sketch for this, और उससे आप देखो कैसे इजीली इसका रेंज फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर चुके हो, ठीक है। सो नाउ सी, भाई अगर आपको किसी भी रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, तो 3-4 पॉइंट्स को ध्यान दो, ठीक है। एक तो आपने इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक कर लिया,
व्हाट इज द वैल्यू एट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। भाई आपको बस ये चेक करना होगा कि एक्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कहाँ पर, ये डिसकंटिन्यूअस तो है ही नहीं है क्लियरली सी, ये डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, वैसे भी आपको गिवन है इसका जो डोमेन है दैट इज आर, तो अब इसका डोमेन आर नजर आ भी रहा है। ठीक है, सो नाउ सी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, इन दोनों पे वैल्यू डेरिवेटिव्स क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। व्हाट इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे -6/4 व्हिच इज -3/4, ये इसका x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू। x इज इक्वल टू -4 पे वैल्यू क्या होगा वो भी हम चेक कर सकते हैं। द वैल्यू एट x इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आप पुट करोगे -4, तो दिस विल बिकम 16 प्लस 12। ठीक है, x इक्वल टू -4 पुट किया तो ये अपना हो गया 16, ये 12 और ये -6 डिवाइड बाय दिस इज -4 पुट करो 6 अगेन 16, दिस इज -4 मतलब -8 और ये प्लस। So what is this value? This is equal to 28 minus 6 मतलब 22 upon this is 20 minus 20 minus 8 मतलब 12। I hope this is clear. Correct? X is equal to -4 हमने put किया था, correct? So now you can see this is 11/6 correct? तो x is equal to -4 पे the value is equal to -11/6, तो ये मान लो यहाँ पे अपना 11/6 तो ये रैशनल फंक्शन के ग्राफ के लिए जहां पे डेरिवेटिव 0 है हमने उनकी वैल्यू चेक कर लिया, डेरिवेटिव -4 और -0 पे वैल्यू चेक कर लिया है, और उसके बाद कहाँ पे इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग है वो हमने चेक कर लिया। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे इसका रेंज क्या वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, तो उसका लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज इफ आई टेक व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों पे वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर सॉरी माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। और अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको इसका लिमिट फाइंड करना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इसका लिमिट आप चेक करके देख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू +1। वैसे भी आप देखो दोनों का डिग्री सेम है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी द लिमिट ऑफ दिस, तो मतलब 1 इसका लिमिट आएगा, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे दिस विल अप्रोच टू 1 y इक्वल टू 1 समवेयर हियर, ये ऐसे कहीं 1 होगा। ठीक है, ये अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। देखो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी पे भी ये y इक्वल टू 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ ने स्टार्ट किया अप्रोचिंग टू 1 से, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ अप्रोचिंग टू 1, -4 पे देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, माइनस इन्फिनिटी से -4 में फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे इसने -4 क्रॉस किया, -4 से 0 के बीच में तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसने अब डिक्रीज करना स्टार्ट किया और डेरिवेटिव 0 हो गया, देखो -4 पे, जस्ट अ रफ स्केच। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव 0 है, द वैल्यू एट -3 द x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है -3/2, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। फिर -3/2 पे डेरिवेटिव 0 हुआ, x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 हुआ -3/2 पे, और 0 के बाद देखो वो क्या हो गया, फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो ये इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और इट विल अप्रोच टू y इक्वल टू 1, क्योंकि उसके बाद डेरिवेटिव कहीं भी 0 नहीं है, तो ये ऐसे असिम्प्टोट बनाएगा और ये y इक्वल टू 1 को ऐसे टेंड करेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होगा, टेंड करेगा। ठीक है, सो यू कैन सी बाय ग्राफ ओनली, यू कैन क्लियरली सी ये जो ग्राफ है दिस इज इन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का रेंज क्या नजर आ रहा है, यू कैन सी इट इज बिटवीन 11/6 एंड -3/2, सो व्हाट इज द रेंज, दिस इज -3/2 टू 11/6, सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप इससे भी चेक करोगे, इसको सिंपलीफाई करके चेक करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, you will find exactly same answer, -3/2 to 11/6, so you should know both the method। इसमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी था, इजीली आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, so now you can clearly see this is not equal to कोडोमेन, और अगर ये कोडोमेन के बराबर नहीं है तो what is this answer, this function is an into function, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इसका रेंज -3/2 से 2 नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे आपने यहाँ पे ये
ए और बी पार्ट आर वेरी इजी, सी और डी में वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये आपने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के रेंज वगैरह सब किए हैं क्लास में, सो आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस, ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, इस पर स्कोर करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।